Okay, everyone, I hope my screen is visible. I am starting with context-free grammars. We'll cover a few examples on how to write context-free grammars given a language, or given a context-free grammar, how we can derive words from it. So first thing that you need to remember is that if there are certain set of rules, we call them productions. So if I have been given a context-free grammar, let's say we say that my sigma, there is some sigma, and then I have rule 1, rule 2, rule 3, and generally we start with a start symbol. Basically we always start with a start symbol. You can just imagine it to be the initial state. So start symbol will go to some non-terminal or probably terminal, whatever. Start symbol is a non-terminal. Non-terminal we generally represent in capitals. So if I have sigma equals to A comma B, so A and B, because these are the input symbols or these are the letters of the alphabet, they can form my terminals. And suppose you need to introduce some operators like plus, minus, etc., then they have to be in this sigma. ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ a comma b लिखा फिर आप यहाँ पे plus introduce कर देंगे. ऐसा नहीं कर पाएंगे. जो भी चीज़ आप यहाँ introduce करेंगे, it has to be the part of your alphabet. So generally your rules are of the form that a non-terminal goes to some non-terminals. So it could be something like that, non-terminal goes to non-terminal 1. So some strings of non-terminals. So this is a possibility when you are writing a rule. And you could also write a non-terminal goes to some collection of terminals and non-terminals. This is also a possibility. You have this possibility, or it could be something of this sort. So we are not, as of yet, we are not focusing on the order. We are not saying that terminals will always come on the left side or terminals will always come on the right side. But to give you a perspective, if terminals always come on the left side, then these are special grammars, and if terminals always come on the right side, then also these are special grammars. So when you will be studying more about parsing in your compilers in system programming, then you will be talking about LL grammars and LR grammars, where these things, terminals always coming in front before the non-terminals, or terminals always coming after the non-terminals will play an important role. But for now, in this particular topic, I will not be focusing on this. We will just understand that a non-terminal can go to, a string of non-terminals, and a non-terminal can go to a terminal followed by basically a combination of terminal and non-terminals in any order. So you could have something in between also. You could have something of this sort also. So we are not posing any restrictions as of now. But there are grammars which pose these restrictions. So if I could, write something like this 95A and 96. So basically here this NT5A followed by NT6, non-terminal 5 followed by A followed by non-terminal 6. So this is also a possibility. So when you specify these rules, then these rules are known as productions. We call them productions because you can produce new words using these rules. So these rules are called productions. But suppose if I say, okay, given this grammar, the entire collection is known as a grammar, which consists of your alphabet as well as a set of rules called production. Now, if I say, okay, derive a word ABB, so you will go on applying these rules to produce this word. So basically, we are generating this, or we are deriving this. So this is the all the sequence of steps.
that you have followed are known as derivation. तो अगर आपको एबीबी फॉर्म करना है तो आपने पहले रूल वन लगाया, फिर रूल थ्री लगाया, फिर रूल टू लगाया, फिर रूल वन लगाया, सपोज. So then that sequence is known as the derivation to form this word. Is this clear? Am I clear till now? If you have a question, please ask. Ajay, Yes, ma'am. are you clear? फिर अब नहीं बोलना कि मेरे को उस टाइम समझ नहीं आया था. अभी क्लियर है? Yes, ma'am. Pratika and Prakriti, are you clear? Yes, ma'am. Loudly, please. Yes, ma'am. Okay. So I have again given an overview that we are using context-free grammars where you have alphabet and set of rules. These set of rules are known as the productions of this grammar. When you apply these rules in a sequence to arrive at a particular word or to derive the particular word in the language, then you say that sequence, you call it as a derivation. The productions can be of form where a non-terminal goes to a string of non-terminals or a combination of terminals and or non-terminals in any order. So these are basically your productions. Productions look like this. We are not placing any restrictions on the ordering of terminal or non-terminals, but when you will study CFGs in more detail, when you will be applying the CFGs to generate, to writing the CFGs to write compilers or write other system programs, then this order will become important, and then you will start giving special names to these grammars, something called LL1, LR1, and all that stuff that I will not be covering. I think it should be covered in your system programming. So just be careful of these things. As of now, no restrictions on the order of terminals and non-terminals. Now moving ahead, let's try this. You have your whiteboard also, or you have a pen and paper, whatever is comfortable, you can do that. So I want to. This is a CFG where sigma is only A. Okay, your sigma is A. Now you tell me what sort of words you can derive from what these set of rules or this production. What language is this particular CFG representing? Just list all kind of possible words uh, possible in this language. Okay. Use your whiteboard, or you can use a pen and paper, whatever is convenient. I'm going on mute, and that's now it's 12:47. I'm giving you 2 minutes. 12:49. I'll start asking. Okay, Pooja is writing something. Fine. Ganesh.
I just written the production. Okay. Okay, so Pooja, what have you written? What are you? So what form? Okay, first production will give you a. Okay, and what does the second thing means? Nothing. Nothing. So okay, let's say that this is a null word. Now, A null word in the language. so what is this language? If you include the null, because that means you can have a null word also. So L equals to null comma a comma a. What is this language? Infinite string of A's. Uh, And what do we call that? Infinite strings of A. uh, Yes, Yashi, you are right. Yes, Pooja, what is infinite string of A? You are right. What is this? Yes, ma'am, clean star on A, like clean very closure of. good. नमन तुम सवाल पूछ रहे हो मुझे जवाब बता रहे हो आपके व्हाइट बोर्ड पे. Okay, Trishna has written AAS. Okay, triple A. Trishna, A बना सकते हैं सिंपल सिर्फ सिंगल A बना सकते हैं. Ganesh has written AS. Okay, and okay वो तो तुम्हारा तुमने बोल दिया. S goes to AAS. So why do we always need why do we always need to start with AAS? Okay, Tanya, आप क्या कर रहे हो? S goes to AS, AAS, triple AS. So you can form your form. Tanya, agar just unmute yourself. So you have formed just one word, which is 4A. Does that mean what I'm saying? What am I correct in your in interpretation? Okay, Tanya. Okay, okay. So anyone who has done it on a sheet of paper who would want to show? Chirag, Harsh. व्हाइट बोर्ड पे किया. किसने किया व्हाइट बोर्ड पे? कौन बोला है? Abhinav. Okay, epsilon. Okay, fine, fine. Abhinav, good, good, good. Okay, and Harsh आपने किया और चिराग आपने किया. यामिनी, I can't see your answer. भूमि, मैम मैंने व्हाइट बोर्ड पे किया. मैम हाउ मच वर्ड वी हैव टू जनरेट मैम. सारे तो नहीं कर पाओगे बट डेरिवेशंस दिखाओ मुझे कौन कौन सी करी है. मैम बस एक ही किया मैम मैंने. कौन बोल रही है? अभिनव नहीं. ज्ञानेश. ज्ञानेश. ओके, जस्ट लेट्स मेक मी सी. ज्ञानेश. ओके, हाँ तुमने एक बार इनफैक्ट लेकिन ओके एवरीवन सी द वे ज्ञानेश हैज डन. ही हैज डिराइव्ड जस्ट वन वर्ड. बट आपको जब डेरिवेशंस लिखनी होती है ना तो आप ऐसे ही लिखोगे जैसे ज्ञानेश ने लिखा है. तो अगर आपने ए लिखना है तो सबसे पहले आप लिखोगे एस गोज टू ए एस, देन एस गोज टू नल. तो एस रिप्लेस हो जाएगा. ओके, लेट मी जस्ट शो यू गिव यू माय व्हाइट बोर्ड. तो somebody put something in the chat. हाँ, yes, you're right, Harsh. Okay. So if I want to write, so when you are writing, suppose I want to derive the first word which is null. Okay, तो null derive करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना. S goes to null. तो my word is null. राइट साइड में स्ट्रिंग लिख दो, जो भी स्ट्रिंग आपका या वर्ड बन रहा है. अब आपने लिखना है S goes to A and S. So this is now my working string क्योंकि अभी फिनिश नहीं हुआ. उसके बाद आप लिखोगे A null by what प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का नाम लिखोगे S goes to null and then आपका फाइनल स्ट्रिंग आ जाएगा
which is A. So this is the way you write. Now अगर आपने S goes to double A करना है तो you will write S goes to AS, then S goes to AAS. ऐसा जैसा अभी ज्ञानेश ने लिखा है AS, AAS, then AA null and then AA, और राइट साइड में रूल्स लिखो या वो प्रोडक्शन लिखो जिससे आपने डिराइव किया. So this is how you are supposed to write. Yes, so this way is correct, to write the answer. And finally null को गायब कर दोगे ज्ञानेश, ठीक है. तो जो आप लोग जैसे कृष्णा ने लिखा है या तान्या ने लिखा है, you are on the right track. Firstly, remember that you always write a capital for non-terminals and a small letter for terminals. Then you have to complete this production. So finally it has to be 4 A's, Tanya. Similarly 4 A's, Krishna. एंड में 4 A's लिखना पड़ेगा, वो S पेंडिंग नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक कोई नॉन टर्मिनल पढ़ा हुआ है आपके स्ट्रिंग्स में या वर्ड्स में, तो उसका वर्किंग स्ट्रिंग कहते हो. दिस इज स्टिल नॉट कंप्लीट स्ट्रिंग, दिस इज नॉट अ कंप्लीट स्ट्रिंग, दिस इज नोन एज अ वर्किंग स्ट्रिंग. तो आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा बाय एलिमिनेटिंग ऑल टर्मिनल्स, ऑल नॉन टर्मिनल्स. और वो कैसे एलिमिनेट हो रहा है वो वाली प्रोडक्शन आपको साथ में बतानी पड़ेगी. So this is the right way. Okay, yes. So Bhumi has written this. So yes, Bhumi, you are right. This is the right way to write. तो आप इस केस में अगर आपको पूछा जाए कि लैंग्वेज कौन सी बनती है, तो ideally you should form first 3 or 4 words, show how they are being formed, and then write a generic expression for that. Is this clear? Any questions? So this is how you are supposed to write. I hope it's clear because most of you could answer it, but I have told you the way to do it. Now this language. कौन बोल रहा है? Yes. जैसे हमने अभी S टेंस टू डबल एस करा. यामिनी कौन बोल रहा है? ज्ञानेश. चिराग. चिराग. Okay, I can't see your whiteboard actually. Sorry. It's not here. व्हाइट बोर्ड नहीं किया मैंने. अच्छा ठीक है, आप बोलो. मैं एक ही पूछना, जैसे मैम आप कह रहे हो 3-4 के लिए प्रूफ करना है. अगर मैं ऐसे लिखता हूँ S टेंस टू डबल एस और मैं उसे आगे फर्दर थर्ड वाले के प्रूफ के लिए यूज कर सकता हूँ क्या? हाँ, to save time, yes, you can do that. So from like this is step 1, जैसे मैंने ये लिखा step 1 ये मतलब word 1 ये word 2 ये, so you can say okay for word 3 we have already derived an A. नहीं कर पाओगे क्योंकि फिर मैम जैसे S टेंस टू एस है, फिर मैं अगेन एस यूज करूंगा तो एस डबल एस बनेगा, एंड अगेन क्या सर ट्रिपल एस बनेगा. तो मैं डायरेक्ट एस टेंस टू ए ट्रिपल एस यूज कर सकता हूँ क्या? देन देखो आइडियली करना नहीं चाहिए, बट इट डिपेंड्स ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन. अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो यू कैन टेक दैट यू कैन टेक दिस लिबर्टी, बट अगर इफ इट्स लाइक 5 मार्क क्वेश्चन देन डोंट. So then you have to use your discretion everyone. कि अगर तो 2 नंबर का क्वेश्चन है then you can skip a few steps and then say कि okay from previous derivation we are doing this, and if it's a question of more marks then please don't take those liberties, don't miss the steps. Okay. Okay मैम. ठीक है. Okay, so now let's what about this? इसको ट्राई करो, अपना व्हाइट बोर्ड इरेज करो और इस पे करो. What is this? The grammar.
यामिनी, will it always be double is? हमेशा डबल बनेंगे? और नहीं मैम, नेसेसरी नहीं है, बिकॉज हम एस को नल भी ले सकते हैं. वेरी नाइस, गुड, प्लीज कंटिन्यू. Okay, Pooja, you have formed one thing. One is A. Can I form simply null word from this, Pooja? आपने एक A फॉर्म कर दिया, फाइन. क्या नल फॉर्म कर सकते हैं सिर्फ पूजा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फॉर्म नल कॉमा A. I think this is giving you, taking all of you in some direction. कृष्णा, can you help me कि कौन सी लैंग्वेज बन रही है इससे? क्या Yes, ma'am. क्या लैंग्वेज बन रही है, क्या लग रहा है, क्या बनेगा इससे? मैम एक तो एस बन रहा है और मैम एस को भी रिपीट कर सकते हैं. हाँ, एस फाइनल वर्ड क्या बनेगा? जब आपने एस लिखा तो ये वर्किंग स्ट्रिंग है, ये फाइनल वर्ड नहीं है लैंग्वेज में. अगर फाइनल वर्ड बनाना है तो आपको ये वाला जो टर्मिनल नॉन मैम टर्मिनल इसमें एक कितनी भी बार आ सकता है, मतलब क्लीन क्लोजर ऑफ ए. अच्छा, तो नल भी आ सकता है, मतलब आप ये बोल रहे हो सिर्फ नल भी यस बना मैम. सकते? यस मैम. तो नल बनाने के लिए कैसे लिखेंगे? जरा डेरिवेशन लिखो जरा इस पे व्हाइट बोर्ड पे. बाकी सब आपने ठीक बोला, सिर्फ एक बार नल की डेरिवेशन लिखो. यस मैम. म्यूट कर लो और नल की डेरिवेशन लिखो. ओके, ऑल ऑफ यू जस्ट राइट द डेरिवेशन ऑफ नल. आई थिंक यू आर Ganesh, you are right. Yashi is also doing it right. Everyone is doing it right, but everyone please write the derivation of null. Ashwin, ठीक words form करें, सिर्फ derivation of null लिखो सारे लोग. चाहे पेपर पे कर लो, नहीं मुझे शो करना चाह रहे हो कोई बात नहीं, but write derivation of null. Prakriti, only derivation of null, okay? Pratika, why are you not writing? Have you left the classroom? Whiteboard classroom? Vibhu, you also write derivation of null. Tanya, सही कर रहे हो. अच्छा तान्या, ये A डबल एस ए कैसे आया? ए एंड में कैसे आया तान्या? कैन यू जस्ट अनम्यूट? तान्या, आर यू हियर? ओके, नो प्रॉब्लम, बट तान्या, कैन यू जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स ये आपका ए डबल एस ए कैसे आया? मतलब ये ए एंड में कैसे आ रहा है? एस ए कैसे आ रहा है? एस ए की तो कोई डेरिवेशन है ही नहीं ना मेरे बेटे. ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये डेरिवेशन कैसे आई आपकी? एस गोज टू एस एस आपने लगाया, ओके. उसके बाद फर्स्ट वाले एस को आपने ए कर दिया. उसके बाद आपने क्या किया? मेरे को ना ये डेरिवेशन क्लियर नहीं है, चाहे पेपर पे लिख दो. एक बार मुझे ये समझाओ कि ये ए डबल एस ए कैसे आए, क्योंकि मुझे स्टेप्स क्लियर नहीं है कैसे प्रोडक्शन लगाए. राइट साइड में प्रोडक्शन जो यूज करिए वो भी लिखो. तब तक मैं बाकी लोगों का देख, आई एम जस्ट सीइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग. एस एस बेटे, अश्विन एस एस गोज टू नल नहीं होगा ना. एस गोज टू नल एंड देन एस गोज टू नल. You can't write that, yes. Very good. Prakriti, right, this is right. And Pooja is also right. Okay, Naman, you are right. But we will apply one production in one step. All of you just remember, Naman, आपने ना नहीं, इसमें कर सकते हो, ठीक है, आप ठीक कर रहे हो. बस साइड. Yes. Now this is right. नमन एंड नमन, जैसे अश्विन ने लिखा ना, राइट में ना आप लिखो कौन सी प्रोडक्शन यूज करिए, ठीक है.
एंड ज्ञानेश ने अभी नहीं लिखा नल का डेरिवेशन. याशी इज राइट. एंड यामिनी आइडियली जो आपने लिखा है ना ऐसे ही एग्जाम में लिखना चाहिए. आइडियली ये लिखना चाहिए. तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू टेक शॉर्टकट्स, क्योंकि यहाँ शायद ऑब्वियस है बट कहीं ना कहीं बाद में कोई कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर्स आएंगी तो आप कंफ्यूज होगे. So if you can just see the way Yamini has written, this is how Yamini has written. This is the right way to write the derivation. Everyone, those who are making mistakes या कोई step skip कर रहे हैं, this is what is expected. Okay. Okay. Now I will move to the next example. So this is again S goes to A star. Okay. This is another way to the language is, sorry, L is A star. जो ये वाली लैंग्वेज थी आप ये देख लो, AS goes AS and null पे जा रहा था S. अब आपने ऐसे एक्सप्रेस किया है. तो देयर आर डिफरेंट वेज और डिफरेंट वेज यू कैन एक्सप्रेस द प्रोडक्शन टू डिफाइन द सेम लैंग्वेज. ये भी A स्टार था, ये भी A स्टार था. अब अगर आपको एग्जाम में कोई पूछे कि L इक्वल्स टू A स्टार है, L इज इक्वल टू A स्टार है, राइट द प्रोडक्शंस फॉर दिस लैंग्वेज, देन यू कैन गिव दिस सेट or this set, provided you are sure that you know all the possible words are being covered. तो ये दोनों set of productions या दोनों CFGs बिल्कुल ठीक हैं for L equals to A star. Is this clear? Any questions till now? हेलो हाँ जी बोलो, प्लीज बोलो. मैम, नल के लिए हमने S टेंस टू डबल H क्यों यूज किया? हम डायरेक्टली थर्ड वाला यूज नहीं कर सकते थे क्या? हाँ. यस मैम, लास्ट क्वेश्चन में भी तो डायरेक्टली किया. हाँ, आप कर सकते थे. सीधा नल वर्ड डिराइव करने के लिए S goes to null कर सकते. बिल्कुल ठीक बोल रहे हो. बिल्कुल कर सकते. सिंपल, अगर आप नल वर्ड डिराइव करना है तो सीधा आप S goes to null लिखो यूजिंग रूल 3. ये भी चले, ये बिल्कुल ठीक है. वो एक्स्ट्रा नहीं करना. यामिनी वाला मैंने पॉइंट आउट इसलिए किया था दैट इफ यू आर यूजिंग अदर प्रोडक्शन देन यू हैव टू गिव द स्टेप्स इन दैट फॉर्म. मतलब अगर नल ना भी होता, ये वाली प्रोडक्शन ना भी होती, तो आपको स्टेप्स कैसे देने थे. तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो यूजिंग प्रोडक्शन 3. ये आप कर सकते हो. अगर आपने रूल्स को लिस्ट डाउन कर दिया ना, तो आप पूरा ना देना चाहो, जो बच्चे पूरा नहीं लिखना चाह रहे, तो एग्जाम में 1 2 3 करो एंड लिखो यूजिंग प्रोडक्शन 3, यूजिंग 2, यूजिंग 1, ऐसा. और उसके बाद सीधा ये नल एंड नल इज अ वर्ड. So this is right. Okay, so this is one CFG with these 3 productions, which produces a language A star. This is another production CFG with only 2 productions. This also produces A star. Okay. Now same चीज मैंने अभी तक सारी चीजें बताई हैं. We denote non-terminals as capitals and T as small letters. पर null जो है उसका स्पेशल प्लेस है. इट इज नीदर अ टर्मिनल नॉर अ नॉन टर्मिनल. तो आप null goes to something नहीं आपको मिलेगा कहीं पे, क्योंकि ये नॉन टर्मिनल नहीं है. और क्योंकि ये टर्मिनल भी नहीं है तो ये वैनिश कर सकता है. तो ये एक स्पेशल प्रोडक्शन है. अगर आपको कहीं से भी नॉन टर्मिनल गायब करना है, इफ यू वांट टू वैनिश दैट, और आपके पास ये प्रोडक्शन है, तो आप सिंपली ये नॉन टर्मिनल एलिमिनेट कर सकते हो. इसका मतलब ये है that whenever I say that you know S goes to null, S goes to A B, okay, and let's say A goes to A or A goes to null, okay, and then B and whatever. So अब मेरे पास जब भी मैं डेरिवेशन ले रही हूँ, मुझे कभी भी A गायब करना होगा, तो मैं A गायब कर सकती हूँ यूजिंग दिस प्रोडक्शन. बट अगर ये प्रोडक्शन B ही नहीं होती, ऐसा नहीं होता, तो आप उसको वैनिश नहीं कर सकते. वैनिश तब कर सकते हो जब स्पेसिफिकली बोला हो कि वो टर्मिनल इट गोज टू नल. अदरवाइज यू कैन नॉट वैनिश.
if this particular rule or this production is not mentioned in your CFG, you cannot vanish. तो ऐसे ही मत गायब कर देना अपने आप, कोई नई प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस मत कर देना अनलेस अनटिल ये CFG में है। नहीं, अगर ये नहीं है तो आप गायब नहीं कर सकते, अगर ये है देन यू कैन ऑलवेज यूज इट टू वैनिश दिस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल, जिसके लिए भी एंटी गोज, जिस नॉन टर्मिनल के लिए इट गोज टू नल है, यू कैन ऑलवेज डू दैट। तो a प्लस बी स्टार के लिए बनाओ, जरा मैं आंसर नहीं दिखा रही, a प्लस बी स्टार के लिए बनाओ, यू हैव टू क्रिएट a प्लस बी स्टार। ओके, दिस इज योर व्हाइट बोर्ड या व्हाइट अपना पेपर ले लो और a प्लस बी स्टार के लिए बनाओ। a प्लस बी स्टार के लिए CFG लिखो, जिसमें 2-3 प्रोडक्शंस लिखो जिस वजह से a प्लस बी स्टार बन जाए। स्टार्ट विद स्टार सिंबल S, नॉन टर्मिनल कोई भी ले सकते हो, बस कैपिटल में रिप्रेजेंट करना। ट्राई करो। अभी ना सारे वर्ड्स नहीं लिखने हैं। अच्छा नहीं, आपने अभी स्टार्ट ही नहीं किया। हमें a प्लस बी स्टार प्रोड्यूस करना है, तो ऐसे प्रोडक्शंस लिखो जिससे एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीज इंक्लूडिंग नल बन जाए। ओके यामिनी, दिस इज नॉट कंप्लीट। ओके, यू हैव टू ऐड मोर प्रोडक्शंस जहाँ पे एनी, इसमें सिर्फ नल a कॉमा b बनेगा। यस मैम, बता के देखना मैम, मेरा वाला देखना। एक सेकंड कृष्णा, यू आर गोइंग इन द राइट मैम डायरेक्शन। मैम यासी। Okay. Yeah, she is S goes to A, S goes to B, S goes to null. S goes to SS. अच्छा, अगर मुझे A बनाना हो तो भी बन जाएगा, B बनाना हो तो भी बन जाएगा। इंटरेस्टिंग। और A B ऐसा। याशी एक काम करो, कोई रैंडम स्ट्रिंग लो, मुझे ठीक लग रहा है, फिर भी कोई भी रैंडम थोड़ा लॉन्ग स्ट्रिंग लो और देखो कि वो प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। कोई भी रैंडम लॉन्ग स्ट्रिंग लो या फिर आई थिंक यू आर राइट, बट मैम हो स्टिल जाएगा मैम, नल लेके हो जाएगा, नल की हेल्प से मैम। ए बी इवन नंबर और नंबर सारे हो जाएंगे, ऑड नंबर भी हो जाएंगे। इवन नंबर भी हो जाएंगे। यस मैम, एक मेरा हाँ भी इंडिविजुअल हो अप्रोक्सीमेटली यही जाएंगे। बना है ये किस कौन बोल। मैम। मैम साइड इससे से बन रहे हैं, सारे बन रहे हैं। ओके फाइन, Pratika is also right. Okay, Yashi, you are right, and Ashwin is also right. In fact, Ashwin आपकी फर्स्ट 3 प्रोडक्शन से ही हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि आपको जो लास्ट प्रोडक्शन, हाँ अगर ए और बी साथ आएंगे, अगर आपको ए पहले चाहिए तो आप AS यूज कर लोगे और अगली बार को बी वाले से so this is right, but it is just an extra production. It is right, not a problem, but this is right. मैम। I'm just yes. मैम इसमें S टेंड्स टू S से भी तो बना सकते हैं हम, डबल S की जगह पे। S tends to S से बना सकते हो, तो फिर वो रिप्लेस कैसे करोगे? जब आप जैसे याशी वाला एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप यहाँ S tends to S करोगे तो अगली बार वो सिर्फ A या B से रिप्लेस होगा, है ना? सिर्फ एक मैम से। S
मैम जैसे पहली बार एस आया, दूसरी बार डबल एस दे रहे हैं जैसे, तो पहले वाले को एक से रिप्लेस कर लेंगे, दूसरे वाले को दूसरे से। एक काम कर, लिख के बता दे बेटे, एक बार कैमरा प्रेजेंट हाँ कर। एक ओके, एंड ज्ञानेश ने क्या लिखा है? A ज्ञानेश, यू आर राइट। याशी, यू आर ऑल्सो राइट। विभू इज ऑल्सो राइट, बिकॉज वो याशी वाला ही आंसर दे रहा है। तान्या, दिस इज इनकम्प्लीट। यू आर इन द, हाँ ओके, तान्या का भी हो गया। एंड कृष्णा ने भी ठीक कर दिया, नमन ने भी कर दिया। So most of you have learned to write the CH. पूजा रंजन, आपके लिए गड़बड़ है। This is, मैम मेरा I think you are now correcting, I guess. Okay, भूमि बोल रही है A B A S B S null. Yes, you are right. And मेरा अभिनव। अभिनव, S A S, okay, S B S। ये वाले S कैसे एलिमिनेट होंगे अभिनव? जो बाहर वाले लेफ्ट वाले हैं, सिर्फ नल डाल के। मैं सबको नल करूंगी तो एलिमिनेट हो जाएंगे, ये बोल रहे हो? यस मैम, नल से एलिमिनेट हो जाएंगे ना। अच्छा, अगर सिंगल नल प्रोड्यूस हो गया, ए प्रोड्यूस हो गया, बी प्रोड्यूस हो गया, देन एस ए एस में मैं दोबारा एस ए एस में एस ए एस डाल दूँ। हाँ, ये भी हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट इट राइट। So when we are like checking the exam, so we won't worry about how complicated it is if it produces the right answer. But still, I would appreciate if you can try a simpler thing. This is right, Abhinav, perfectly right. It will fetch you all the marks. ओके But we will let's always try for writing simpler version. Okay. ओके। तो ये बुक में दिया हुआ था। आई थिंक काफी लोगों ने यही वाला दिया है हमें। बट याशी देख लिया ना, डिराइव करके सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं ना? यस मैम हो रहे हैं। सचिन, आप कुछ बता रहे थे, आप कुछ बात कर रहे थे, प्लीज प्रेजेंट। आप यस क्या मैम, बोल? एक मिनट। हाँ जी। मैम ऐसा कुछ एक मिनट, स्क्रीन अभी दिख रही है? अश्विन, अश्विन आई एम जस्ट, हाँ एक सेकेंड अश्विन, एक सेकेंड, आई विल कम बैक टू यू। ओके, जस्ट जूम दिस स्क्रीन a bit. Okay, S goes to S, S goes to A, S goes to B, S goes to null. जैसे मैम डबल वर्ड चाहिए तो 2 बार एस कर लिया। वो बेटे वो प्रोडक्शन है ही नहीं ना, 2 बार कैसे कर लोगे? S goes to S will always be S goes to S only ना, ओनली सिंगल S आएगा ना, तो S मैम नहीं। मैम जैसे याशी वाले में डबल एस था, अब हमें जैसे 4 स्ट्रिंग चाहिए तो हम डबल एस 4 बार लिख के फिर रिमूव कर रहे थे ना। नहीं, बट वो प्रोडक्शन होनी चाहिए ना। ऊपर देखो, आपके प्रोडक्शन रूल सेट दिखाओ, आपका जो प्रोडक्शन सेट है इसमें स्टार्ट, अच्छा आपने स्टार्ट सिंबल ही नया ले लिया है क्या? मैम स्टार्ट एस से किया, फिर एस टेंड्स टू एस कर लिया। हाँ, तो सेम S ही ले tends लिया। to S is giving you only one thing. So whenever you are writing start S goes to S, तो आप S पे आ गए। जैसे अगर मैं ये बोलूँ तो ये वाले दो चीजें, मेरा पॉइंटर तो नहीं दिख रहा होगा ना आपको? नहीं मैम। Okay, start goes to S and S goes to S. Wait, just let me write this. Okay, आप स्क्रीन वो कर दो, मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है? ओके Ashwin, I'll come back to your question. Okay. Okay, is my screen visible? यस मैम। S goes to, मान लो ये स्टार्ट है आपका, ठीक है? तो स्टार्ट गोज टू S, ऐसा कुछ लिखा था। फिर यस मैम। S गोज टू S लिखा था। यस मैम। फिर S goes to ए। something A and all that, right? यस मैम। So this is not AS, this is only A, है ना? हाँ मैम। Okay, and S goes to B. बी एंड एस गोस टू नल। Okay, let's assume null is there. तो start goes to S है, तो मान लो मुझे डबल A डिराइव करना है, ठीक है? या ट्रिपल A लिख लेते हैं। तो जब मैंने लिखा start goes to S, तो हम आ गए ओके S
से यूजिंग रूल 1, उसके बाद S goes to what? Only single S ना? हाँ S goes to S only ना? It's not going to double S. मैम, तो जैसे इनके में था S goes to double S, तो डबल मैम S उसमें एक्स्ट्रा S बना हाँ रहे। तो एक एक्स्ट्रा S इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या हो रहा है? देखो सिंगल S है, अब अगली वाले S को रिप्लेस करना चाहूंगी तो A या B या नल से कर सकती हूँ, ठीक है, हाँ पर वो लिमिटेड टू ओनली 1 लेटर वर्ड हो जाएगा। बट जैसे ही मैं ये बोल देती हूँ S goes to SS, ठीक है, अब जब आपका यहाँ पे मैं आ गई, ओके, स्टार्ट गोज टू एस, अब एस गोज टू एस एस है। इस प्रोडक्शन की वजह से मेरे पास एक नया एस इंट्रोड्यूस हो गया। मैं क्या करूंगी कि मैं इस एस से जितना मर्जी जो भी रिप्लेसमेंट करना चाहती हूँ, एस गोज टू एस एस गोज टू ए, जो भी है वो मैं कर सकती हूँ। इस वाले एस को से दोबारा एक नया एस इंट्रोड्यूस कर दूंगी जिससे मेरी लेंथ बढ़ती जाएगी। यहाँ आप ओके, लेंथ ठीक है बढ़ा, मैम, ठीक है, हाँ समझ गए। ओके। मैम एस टेंस वैसे सही है कि गलत है, मतलब सही है एस गोज टू एस? नहीं नहीं, this is wrong गलत because है, you are not improving the length. You are not कंकैटेनेशन increasing. कंकैटेनेशन नहीं हो पाएगा इसमें। राइट, आपकी लेंथ नहीं बढ़ रही ना, एक ही लेंथ का रह रहा है, तो सिर्फ 1 लेंथ वर्ड बन पाएंगे। ओके ओके, so now you have to do this a plus b का पॉजिटिव क्लोजर। a plus b का पॉजिटिव क्लोजर कैसे करोगे? मैम नल वाली प्रोडक्शन हटा देंगे। Very nice, done, very good, thank you. Okay, Ashwin, you had a question, I missed that. So we will to produce a goes to s goes to a plus b plus, simply ये production हटा दो, just remove this production and you will have a plus b का positive closure. Now ask me Ashwin. हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बट पता है क्या होगा, कभी ना कभी ये एक्स तो एलिमिनेट करना है ना। अगर आपको नल ए और बी 1 लेंथ वर्ड चाहिए या 0 लेंथ वर्ड चाहिए तो वो इससे कवर हो जाएंगे। नहीं, और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, और क्या करोगे? देखो जब आप एस गोज टू ए एस करते हो, देखो आपको नल चाहिए, सिंपली नल प्रोड्यूस करना है तो प्रोडक्शन 5 यूज कर लो। 8 चाहिए तो प्रोडक्शन 3 एंड 4 यूज कर लो, बन गए। सिंपली इनको यूज करने की जरूरत ही नहीं है ना, आप सिंपली ये 3 प्रोडक्शन यूज कर लो। दिस कम्स फ्रॉम प्रोडक्शन 5, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम प्रोडक्शन 3 and this word comes from production 4. This is, if I call this 1, if I call this 2, I'll call this 3, I call this 4 and I call this 5. You need not start from here, you can simply use these productions, okay? But if you have to form more words, then I have to increase the length. उसका तरीका ये है कि s को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हो, बेसिकली रिकर्जन है ना ये, आप इसको रीइंट्रोड्यूस कर रहे हो तो इससे आप लेंथ बढ़ा रहे हो। तो अब मेरे को ए फॉर्म करना है, तो पहले आप ए एस बनाओगे यूजिंग प्रोडक्शन 1, देन आप फिर बनाओगे दोबारा से एस को रिप्लेस करोगे किससे? ए एस से। तो आपने प्रोडक्शन या ए एस से करोगे या सिंपली ए गोज टू, ये वाले एस को ए से भी रिप्लेस कर सकते थे। मैं अगर इसको ए से रिप्लेस कर देती ऐसा, तो यूजिंग प्रोडक्शन 3 मेरा ए बन गया, क्योंकि इस एस की वजह से, रिकर्जन की वजह से लेंथ बढ़ गई है। तो जब भी आप सेम जो लेफ्ट साइड पे आपका नॉन टर्मिनल है, अगर आप उसको राइट साइड पे प्रोडक्शन में रीइंट्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे आप उसको यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस कर रहे हो या राइट हैंड साइड पे रीइंट्रोड्यूस कर रहे हो, सो इट सिंपली मीन्स कि आप रिकर्जन लगा रहे हो, आप उसकी लेंथ बढ़ाना चाह रहे हो, आप यू आर गोइंग टू यूज मोर फैक्टर्स ऑफ दिस, ठीक है? अब आप यू कुड हैव डन इट लाइक दिस ऑल्सो कि ए एस करते, फिर आप करते ए एस और फिर आप करते ए। तो ये आपने 3 स्टेप्स में डिराइव किया, विच वॉज प्रोडक्शन 1,
then I guess production 1 again, and then your production 5. तो आपकी डेरिवेशन इसमें डबल ए के लिए 2 डेरिवेशन हो गई हैं. एक है ये वाली which is using only 1 and 3, and एक है ये वाली using 1, 1 and 5. Okay, so you could have simply, जो कई बार कई बच्चे मैं देख रही हूँ कि सिर्फ ASBS यूज करें, पर अगर ये है अवेलेबल तो डायरेक्टली यूज करो, एक स्टेप बच जाता है आपका. क्योंकि जब आप कंपाइलर लिखोगे या कंपाइलर को चलाओगे तो आप कंपाइलर से एक्सपेक्ट करोगे कि वो कम टाइम में काम करे. तो why should it go via this route? Why not this if this is available? Available नहीं है then it's okay, then you have to do this. But if this is available, then you would expect your compiler to use these steps instead of these. Okay, तो a plus b plus करना पॉजिटिव क्लोजर के लिए, मैंने अगर सिंपली ये एलिमिनेट कर दिया तो आपका काम बन जाएगा. अब a plus b अगर आपने नल एलिमिनेट कर दिया ना, तो फिर देन यू कैन नो लॉन्गर यूज दीज प्रोडक्शन. ये वाला रास्ते जा भी नहीं पाओगे. जब नल होगा ना तो ये ऐसे नहीं होगा कि ए, सो फाइनली फिर उसको ए से रिप्लेस करना पड़ेगा इफ यू आर एलिमिनेटेड नल. थिंक अबाउट इट. आई एम जस्ट इरेजिंग दिस स्लाइड. मैं ये बोल रही हूँ इफ आई एम एलिमिनेटिंग दिस, so obviously this results in positive closure, but it also impacts your derivations. Now you no longer have 2 ways to derive a word. आप just note this down, एक बार ट्राई करके देखो. अब आप 2 तरीके से कोई वर्ड नहीं डिराइव कर सकते. अब हमेशा हर वर्ड की एक डेरिवेशन आएगी. नल तो आएगा ही नहीं. फर्स्ट थिंग, नल प्रोडक्शन रिमूव करने से 2 चीजें हुई. एक तो नल वर्ड एलिमिनेट हो गया, आपकी लैंग्वेज ही बदल गई. दूसरा, अब आपने ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4 एज करना है. मान लो अगर आपने करना था सिंपल सिंगल ए, तो अब आप ये इस रास्ते से नहीं जाओगे कि पहले ये यूज किया फिर ये यूज किया ना. आपको सिर्फ ये तरीका ही है ए जनरेट करने का. नाउ देयर आर नो 2 डेरिवेशन, देयर इज ओनली 1 डेरिवेशन. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Anyone who is not clear with this? Ma'am, please repeat. Okay, what I am saying is to produce the positive closure, I am simply removing the null production. So obviously I will not have the null word in my language. So my language has changed. One thing. But when I had null, you could derive a single A using 2 possible sequences. One sequence was simply use this production. दूसरा सीक्वेंस था A डिराइव करने का. दूसरा डेरिवेशन क्या था? ये यूज करते और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये यूज करते. तो 2 पॉसिबल डेरिवेशन थी ए यूज करने की. बट जब नल गायब हो गया तो उस केस में अब आप ये वाला रास्ता यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि एस एलिमिनेट नहीं हो पाएगा. नल नहीं है उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको वैनिश करने के लिए. तो आपको हमेशा ये तरीका ही अपनाना पड़ेगा अगर आपको किसी चीज को जब आपको टर्मिनेट करना है या टर्मिनल बनाना है. So S goes to A is only one option to derive a single letter A. अब अगर आपको ट्रिपल ए करना है, ठीक है, ट्रिपल ए करना है और अभी मेरी लैंग्वेज में नल है, S goes to नल है, तो मेरे पास क्या तरीका है? AS, then AS, then A, S, and then A. ठीक है, this is one derivation. The other derivation is AS, S, A. मैंने इसमें ये वाली प्रोडक्शन यूज करी, सिर्फ ये वाली. मैंने नल वाली नहीं यूज करी, मैंने ये. ठीक है, समझ आए? 2 डेरिवेशन है. पर अगर अब मैं बोल दूं कि S goes to नल नहीं है, तो क्या आप ये वाली डेरिवेशन यूज कर सकते हो? If I don't have this production, can I use this derivation? No. No, na. So that means that if I don't have this
So in this particular case, there will only be one possible way to derive a particular word. जो भी word ले लो, हमेशा एक तरीका होगा उसको derive करने का, दो तरीके नहीं होंगे. As goes to null आपको ऑप्शन दे रहा था बीच में s को वैनिश करने का, अलग नया ऑप्शन दे रहा था s को वैनिश करने का, बट इस केस में s को आप ऐसे ही वैनिश नहीं करोगे. s will always have to be replaced by a, which will reduce the number of steps also. तो जब मैं अभी अभिनव से भी बात कर रही थी कि हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लिसिटी की बात करते हैं, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि लेट्स ट्राई टू कीप द नंबर ऑफ स्टेप्स एज मिनिमम एज पॉसिबल. नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, जो एग्जाम में आंसर आ रहा है आप वो लिख दो, बट गोइंग मूविंग ऑन, मूविंग फॉरवर्ड, जब आप और एक्सपर्ट करोगे तो एक्सपेक्टेशन ये है कि आप ये वाली डेरिवेशन ज्यादा फोकस कर पाओ. CFGs में ऐसी पॉसिबिलिटी हो दैट आई कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेप्स. तो इज दिस पोर्शन क्लियर? Yes, ma'am. Okay, thank you. So this is a language of words over a comma v with a double b in them. जरा डिराइव करके देखो डबल बी वाले सारे वर्ड्स, मुझे एक बार दिखाओ. यूज योर व्हाइट बोर्ड और पेपर टू डिराइव all the words that have a double b in them. All the words that have a double b in them. Please derive. Write derivations of all the words. सबसे पहले मुझे बताओ फर्स्ट वर्ड क्या होगा लैंग्वेज में? नल होगा इस लैंग्वेज में? No. नो. ओके, बिकॉज डबल तो चाहिए. व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? BB. बीबी होगा. एंड देन सेकंड वर्ड? ए बेबी, BBA, ए. डबल भी होगा इसमें बीच में हमेशा. Right. B, B, A. Then you will have A, B, B, A, B, 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 A. Then you would have something like A, B, 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 A, and so on. So you have to derive these words. Write derivation. Okay, write derivation of सारे छोड़ दो, ये पकड़ो. A, B, B, this is one word. A 4 times B, A double B. इस वर्ड की डेरिवेशन लिखो. A 4 times B, A double B derives at this.
Done? Anshika, where are you? Abhinav has done. मैम मैं कॉपी पर कर रही हूँ. Okay, all of you are doing. Okay, so all of you were able to derive the words, and if you can see the whiteboard, I think there are different possible derivations again. Okay, अलग अलग derivations हैं. Okay, okay, so I am moving forward. अब आप नोटिस करो जो यहाँ पे प्रोडक्शंस हैं, हमने इस फॉर्म में और लिखना शुरू कर दिया. x goes to ax और x goes to bx और x goes to a और x goes to b और x goes to null. तो इस फॉर्म को हम बेकस नॉर फॉर्म और बेकस नॉर्मल फॉर्म या BNF कहते हैं. तो दिस फॉर्म इज नोन एज बेकस नॉर फॉर्म. शॉर्ट हैंड है ये, मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज आर बेसिकली 1 2 3 4 5 प्रोडक्शन. ये वाला जो लाइन है ये टोटल 5 प्रोडक्शन है, लेकिन आपने बेकस नॉर फॉर्म में लिखा है तो वो एक ही लाइन में आ गया. So these are total 5. These are not two productions. This is one production and this is second production. No, this is one production. This is second production. This is third production. This is fourth. This is fifth, and this is sixth. There are 6 productions in this language, but I have expressed it using Baker's NOR form or Baker's normal form. Okay. Now let me give you one more question जो मेरी slide show में नहीं है. You have to write a CFG over sigma equals to a comma b, where with the and the language is कि language में कहीं पर भी 3 A's होने चाहिए. 3 A's anywhere in the language. So I can have something over here. I can have something over here. I can have something over here. And I can have something over here. But I want
Okay, let me just change the question. I want exactly 3 A's. I want exactly 3 A's. लैंग्वेज में एग्जैक्टली वो सारे वर्ड जिसमें एग्जैक्टली 3 A's हो वो लिखो. Write a CFG to produce a language which has exactly 3 A's. Please write that CFG. कृष्णा एग्जैक्टली 3 A's कहीं भी आ सकते हैं, नॉट 3 A's टुगेदर, कहीं भी आ सकते हैं. ओके ओके कृष्णा कहीं इसी डायरेक्शन में जा रहे हो. तान्या बी एक्स बी एक्स. दैट्स सो ब्यूटीफुल डन तान्या. वेरी नाइसली डन तान्या. सो कंसाइज एंड yes, you are right. Yes, almost. Nalini is also right. अभिनव. Abhinav is close to. Okay. तो ना अभिनव तुम्हारे ना एज 3 के फैक्टर्स में आना शुरू होते हैं. नॉट एवरीवन जस्ट सी दिस. जब आपने एस इंट्रोड्यूस कर दिया ना तो ये वाला फैक्टर मैं दोबारा डाल सकती हूँ. ये वाला एस को रिप्लेस कर सकती हूँ वापस से. अगर एस गोज टू एस एस ए एस है एंड एस ऑल्सो गोज टू दिस तो मैं इस वाले एस को कम्प्लीटली इस फैक्टर से रिप्लेस कर सकती हूँ ना अभिनव. हाँ मैम वो एक्स कर देता हूँ मैं उसे. राइट राइट राइट. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट इट. तो दिस इज ऑल्सो डन. तो अब आप एक प्रोडक्शन वो लिख लोगे जहाँ पे at least 3 A's, not exactly 3 A's, at least 3 A's. At least 3 A's. I've changed the question to at least 3 A's. मैम जो अभिनव वाला आंसर था When you are using ये वाला बोल रहे हो ना यामिनी. यस मैम. तो आप इसमें अच्छा मैम इसमें एस ई वाला हट जाएगा. एटलीस्ट 3 वाला है मैम चेंज कर दिया.
हाँ नहीं मतलब जो पहले था उसमें एक्स नहीं आएगा, एस आएगा। मैं लिखती हूँ। अरे उसमें एक्स की जगह पर एस था, तो मैम ने बताया था ना वो रिपीट हो सकता है, इसलिए वहाँ पे स्टार्टिंग में एस को हटा के एक्स कर दिया। अच्छा हाँ बट इस सिचुएशन में एच पी थ्री है ना, तो स्टार्टिंग सिंबल कौन सा है अभिनव तुम्हारा इसमें? एस। मैम एक्स है, एक्स है। तो फिर अगर एक्स स्टार्ट सिंबल ले रहे हो ना तो एग्जाम में फिर मेंशन करना दैट एक्स इज माय स्टार्ट सिंबल। ओके, ओके। so this is your answer for at least 3A. यस मैम। Yes, this is right. यामिनी तुम क्या बोल रहे हो? मैम मैं लिख रही हूँ। ओके ओके, ए एक्स नल। कृष्णा नल भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। याशी ज्ञानेश इज ऑल्सो, नहीं ज्ञानेश तो कंप्लीट नहीं है ना शायद। ज्ञानेश यू आर फिनिशिंग इट राइट नाउ। यस मैम। ओके विभू, अभी आप कर रहे हो? अच्छा मैम मेरा देखना। okay. Anya, I think this yours is not complete, I guess. Yeah, भूमि मैंने चेक कर लिया था, this is right. Yamini, I think almost everyone has written the same. I think you are right. सबने ये सिमिलर आंसर ही दिया। ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? ए अच्छा, इसमें मैं बी पे डाल सकती हूँ। ठीक है यामिनी, ठीक है। ओके तो बेटा स्मॉल, अब इवन इवन बनाओ भाई सारे लोग। प्लीज मेक CFG फॉर इवन इवन। इवन इवन याद है ना? even number of A's and even number of B's, they can lie anywhere, but even होना चाहिए टोटल काउंट दोनों का। इक्वल नहीं है, इवन है, इवन इवन।
नमन, जब ये एक्स में सिर्फ ए डालूंगी, बाकी सारे नल कर दूंगी, ये वाला केस देखो। अच्छा नहीं, सही कर रही हो। ए and then I do this null and null. A. I do this null. नहीं नमन, ये देखो, इसको मैं अगर मान लो यहाँ पे डाल दूं ए, फिर मैं कर दूं null and then I have A, okay, and then I do a B. So 1 2 3 4 5 6, right? आपने यहाँ पे बैलेंस कर दिया इसको। या ए आएगा इस ए को बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए। Looking correct. Looking correct. I think this is correct. Can anyone find a flaw in this? I think this is correct. I feel मैम सही है। okay. Abhinav S. BB goes S. नहीं अभिनव, दो एक साथ नहीं लिखोगे टर्मिनल, क्योंकि ए बी इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिग्मा। ओके, यू कैन ओनली राइट सिंगल ए और सिंगल बी, यू कैन नॉट। अच्छा, रमन ने भी कुछ ऐसा ही किया क्या? हाँ नमन, सॉरी, I don't think we can do this. डबल ए तो नहीं लिख सकते, I guess. It's not. अच्छा, you are writing concatenations of A. Let me do that. मैम इसमें अगर हम सिर्फ ए बनाना चाहे तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एस में बी भी है शायद। नहीं ए ठीक है, ठीक है, नहीं सॉरी, क्या बोल रहे हो आप? सिर्फ ए बनाना चाहे तो? यस मैम, विद 2 A's and 0 B's। या हाँ, डबल ए या डबल बी बनाना चाहो, क्योंकि यहाँ पे आपने बी डाल दिया। नमन, इसमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा। दिस इज राइट बट दिस इज इनकम्प्लीट एज पॉइंटेड आउट। अभिनव, आई थिंक यू आर ऑल्सो राइट। एस गोज टू, बेटे ये वाली प्रोडक्शन ना, एस गोज टू एस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट इंट्रोड्यूसिंग एनीथिंग न्यू। मैं भूल गया, उसे एक्स करना भूल गया। Okay. S goes to BBS is fine. S goes to AA is also fine. Where S goes to null is also fine. अब AB से कलर ठीक है, फिर बीच में कुछ भी आए। बेटे X, तुम्हारा स्टार्ट सिंबल X है कि S है? पहले ये बताओ। मैम वो आपने उस टाइम पे क्या हुआ ना, एस ऐसे हो रहा था तो मैंने उसे एक्स कर दिया था, नीचे सारे एक्स एस एस लिखे थे तो रिपीट नहीं हो रहा था तो एक्स कर दिया था। अच्छा ठीक है, बट जब भी एग्जाम में लिखोगे तो स्टार्ट सिंबल के नाम लिखना, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट एस और या स्टार्ट ये दोनों लेते हैं बाय कन्वेंशन। कन्वेंशनली हम ये लेते हैं, तो अगर आप कोई उससे डिफरेंट स्टार्ट सिंबल ले रहे हो तो हमेशा एग्जाम में मेंशन करना, ठीक है? सो दिस इज एक्स गोज टू एस, BBS, BB के बाद AB आया, but this will always start with the AB, okay, if I want to start with only double A, double B हो गया। I want, what about triple A? AB आ गया, इसमें AB डाला, ABS, ABS, ऐसा कौन सा वर्ड है जो इससे फॉर्म नहीं हो रहा? कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो फॉर्म नहीं हो रहा, चेक करो, कोई प्लीज हेल्प करो।
BB AA BB तो अभी ना अभी तक तो मुझे ठीक लग रहा है. आई थिंक आई हैव टू फाइंड आउट वर्ड्स इफ देयर इज अ. आप ट्राई करो एक बार. ऐसा कोई वर्ड है जो फॉर्म के बाद अदरवाइज दिस लुक्स फाइन टू मी. मैम आई ए होप. बी हाँ ए बी डब्ल्यू ए बी डब्ल्यू कर रहे हैं, तेरी आवाज ही बिल्कुल ऐसी आई है. चैट पे लिख दे बेटी. फिर देखते हैं ट्राई करते हैं. ठीक है. तब तक चिराग ने साथ 3-4 बीबी बोल दिए. ओके. अश्विन तुम्हारा कंप्लीट हो गया क्या? इवन इवन है. ये बन तो जाएगा चिराग. स्टार्ट भी ले ले, फिर उसके बाद एस में डबल भी डाल दे, फिर उसके बाद ए भी ले ले, फिर उसके बाद में एक एस बचेगा उसमें डबल भी डाल दियो. शायद से रुको इसमें एस शायद से एंड में डालना पड़ेगा. आई थिंक ये तो उसका नमन जैसा ही है ना. आई थिंक अश्विन दिस इज लाइक नमन. यहाँ पे ए और ए बी भी तो आ सकता है. ए बी 3 A's and 1 B. A B A's and I put A B. हाँ बेटे ये हो सकता है. ये गड़बड़ है इसमें ऑड मतलब ऑड होने का चांस. मेरे वाले में शायद एंड में और एस लगाना पड़ेगा और स्टार्टिंग में भी, ताकि डबल ए और डबल बी पे एंड हो. कौन बोल रहा है? नमन बोल रहा है. अभिनव. डबल ए और डबल बी पे एंड हो. डबल ए और डबल बी पे तो वैसे भी हो जाएगा ना एंड. नहीं मैम, ए बी को लेकर ए बी इसमें जो फोर्थ लाइन है ना उसमें एंड में एस लगाना पड़ेगा और स्टार्टिंग में भी एस लगाना पड़ेगा. उससे क्या मिलेगा आपको? अभी कौन सा वर्ड नहीं फॉर्म हो रहा है ये? मैम जैसे चिराग ने दिया था ना एक ए डबल बी, मतलब जिसमें ए बी की, जैसे मैंने इसमें से उठा लिया, ए बी उठा लिया और बी ए बी उठा लिया, लेकिन इसे डबल बी पे एंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एस तो बीच में है. So if you want to start or end with the. हाँ मैम, इसलिए एंड में करना पड़ेगा और डालना है बस. नहीं पर अगर मैं ये बोलूँ डबल ए and then I replace with this A B S B A B. अच्छा. Okay. Then I don't have another S to end. Okay, so add करो उसमें करो add करो. याशी क्या खिचड़ी बनाई? S goes to A, S goes to B, S goes to S. Okay. Y A, A Y. अच्छा, और तुम्हारा Y क्या है? तुम बैलेंस कर रहे हो बी से ए को. Y टेंस में Y अच्छा, दो y आपस में बैलेंस हो गए और दो x आपस में बैलेंस हो गए. कंप्लीट नहीं है ना अभी ये? हाँ ये मैं देख रही हूँ. X goes to A भी कर दिया, देख रही हूँ कंटिन्यू. x वाला पोर्शन नहीं है ना. x goes to what? वो भी लिखो. X goes to A है वो. अच्छा नीचे लिखा हुआ. ओके, दिस इज B A B A. तो डबल ए कैसे आएंगे इसमें फिर? हम ऊपर से आए ना. S goes to A. नहीं बट हाँ सारे वर्ड नहीं फॉर्म हो पाएंगे ना. एक बार आप वाई में घुस गए तो उसके बाद कुछ डबल बी डालना पड़े तो नहीं आएगा ना. वही देख रही हूँ. मैम मैं प्रेजेंट कर दूँ? क्या कर दूँ? प्रेजेंट 7th मतलब हाँ पे प्रेजेंट करो प्रेजेंट करो. मैं स्टॉप करती हूँ. Tanya, I'm seeing yours. तान्या मुझे ये लग रहा है कि इसमें ऑड नंबर ऑफ एज एंड बीज बन जाएंगे.
इसमें गड़बड़ है। याशी लेट मी पिन यू। रोटेट करना बच्चे, स्क्रीन रोटेट करो। ओके, एस 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 गोes to null, एस goes to एस एक्स एस। हाँ, ये मुझे ठीक लग रहा है। आपने इसको कहीं पढ़ा है? हैव यू रेड दिस समवेयर? नहीं मैम। मैम मैंने याशी का देखा था, इसमें इसने एक्स और वाई दोनों लिए थे ना, तो आई थॉट कि ए बी बी ए को अलग ले लूँगी तो वो इजी रहेगा। ओके ओके, so let me give you the answer now. ओके, यामिनी मेरे को थॉट बताना कि कैसे करना है, ठीक है? why you did what you did. Okay, firstly, is my screen visible? नो मैम। Now यस मैम। I want to start somewhere. I want to start somewhere. Let me start from start symbol. Now Yashi, what should I do? Oh, Yamini. यामिनी, हाँ बताओ। मैम पहले तो नल हो जाएगा। ओके, और देन हम एस मैम पहले हम एक्स ले लेंगे, दूसरा टर्मिनल। नॉन टर्मिनल या टर्मिनल? ऑन टर्मिनल, सॉरी। ओके, एक्स गोज टू एक्स लिखूं? यस मैम। ओके, रिटर्न। देन मैम फिर एक्स को डिफाइन करेंगे। ओके, एक्स गोज टू मैम ए और बी बी। ओके, एक्स कैन गो टू माई ए और बी बी। सो बेसिकली जो क्लम्स वाले हैं, इवन क्लम्स वाले, वो इससे आ गए। ओके, और उसके बाद मैम अगर हमारे पास ई बी या बी ए आता है तो उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। मतलब हम उसके लिए दूसरा एक नॉन टर्मिनल ले लेंगे। okay, fine. So basically, class, this is for balanced, all the things that are balanced. Okay, now if I have something which is unbalanced, why कह रहे हो उसको? यस मैम। Okay, ए बी बी ए बी और बी ए। ओके, अब ये तुमने अनबैलेंस्ड के लिए बना दिया। अब जो अब इसको यूज कैसे करेंगे? मैम अगर हमें सिर्फ बैलेंस के लिए बनाना है तो उसमें तो हम सिर्फ एक्स भी डाल सकते हैं, बट आगे पीछे एस इंक्लूड कर देंगे कॉन्कैट करने के लिए। ऐसा कुछ? यस मैम। ये और अगर हमारे पास अनबैलेंस्ड आते जैसे ए बी बी ए, वाई यूज करेंगे उसके लिए हम एस में, मतलब हमें 2 वाई यूज करने पड़ेंगे, 2 वाई कॉन्कैट करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ, एस वाई देन एक्स? नहीं, नहीं मैम, 2 वाई कॉन्कैट करने पड़ेंगे, वाई एस वाई। ऐसा कुछ? मैम वाई, दोनों वाई के बीच में भी तो एस आ सकता है ना। ओके, एस वाई एस, ऐसा कुछ? यस मैम। Okay, so everyone, is there anything missing in this?
So she's saying that I'm using Y to manage the unbalanced stuff. Unbalanced stuff is something of this sort. You know, if it has AB, तो like एक और unbalanced introduce करना पड़ेगा जिससे वो पिछले वाले को balance out कर दे. और ये balance है कि जब clumps में आ रहे हैं. तो I want to ask you, is this complete? Is there something that we are missing? कंप्लीट अपना करेगा। चिराग आपकी वॉइस ना बहुत ब्रेक हो रही है। टाइप कर सकते हो प्लीज? हाँ करते हैं। Okay, Tanya is saying something. हेलो। Yes, Chirag, please. हाँ मैम ये अभिनव जैसे ही वर्क करेगा ना तो ये मेरे को तो नहीं लगता इसमें कुछ रह जाएगा। उसने भी यही किया था, एस एंड एस बोथ साइड कर दिए थे और बीच में ए बी बी ए विद एस एंड ए बी बी ए। Okay. Anyone who thinks differently, if there is some word which can be missed, let's try some longer word. Let me try this. A A A B A B. ये बन जाएगा? इवन है ना ये बनेगा क्या? अमन अभी चेक करते हैं। हाँ मैम सही है, हमें ये बन जाएगा, इससे सारा बन जाएगा। बन जाएगा। ओके नमन क्या बोल रहे हो? S goes to X, X goes to AA or BB or null. Okay. X A X A X. Okay. X B X B X. Okay. ये कंप्लीट है क्या नमन? B A फिर व्हाट इफ मैंने ए बी सिंगल ए और सिंगल बी तो नहीं है। हाँ यामिनी ये ए बी बी ए कैसे बनेगा जरा बताओ भाई। ओके आई थिंक यामिनी नमन वाले उससे पूछ नमन में बन जाएगा, ए बी ए डबल बी ए बन जाएगा आराम से। एक्स से एक्स है ना, तो उसमें हाँ स्टार्टिंग और एंड के एक्स को नल कर दिया और बीच वाले एक्स में डबल ए डाल दिया, ये है ना, डबल बी डाल दिया। ओके सो दिस इज हाउ योर बुक राइट्स इट, वो भी मैं दिखा देती हूँ। सो इवन के एज यामिनी सेड जो बैलेंस और अनबैलेंस के अप्रोच है, तो मैं दो बुक बोल रही है कि बैलेंस नाम का एक नॉन टर्मिनल ले लो और अनबैलेंस का ले लो। तो बैलेंस मीन्स दैट इट विल प्रोड्यूस इवन, कैन यू सी द स्क्रीन? यस मैम। Okay, so balance says that you can produce even clumps of A's and B's, and unbalanced means odd A या B आ जाएगा, तो जिसको balance out करना पड़ेगा। तो S goes to SS, S goes to null, दो S हैं, उसके बाद बैलेंस स्ट्रिंग डालोगे तो किसी भी तरफ डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। बैलेंस के बाद दोबारा से कोई और फैक्टर ले लो या कोई फैक्टर ले लो और एंड में बैलेंस लगा दो। अगर अनबैलेंस ले रहे हो फिर जो मर्जी फैक्टर डालो, बट उसको दोबारा बैलेंस आउट करने के लिए दोबारा से अनबैलेंस नॉन टर्मिनल लेना पड़ेगा। और बैलेंस क्या है, या तो ए है या बी बी है, और अनबैलेंस क्या है, ए बी है या बी है। ये क्लियर है? वी आर सिंपली सेइंग okay, thank you. So we are simply saying that because even बनाने हैं तो आप बैलेंस स्ट्रिंग से भी बना सकते हो अनबैलेंस से। तो बैलेंस तो सिंपली ये है कि ओके क्लम्स वाले आ गए, बट अगर अनबैलेंस कहीं पे भी आएगा तो उसको वापस से बैलेंस करना पड़ेगा। If you have a balanced string, you can form more factors of S, which could have been balanced with something with balance or something with unbalanced. Similarly, if you have a balanced string at the end, it could start with any factor of S.
and then unbalanced, and any factor in between, and unbalanced. So this unbalance will balance the other unbalanced factor, which would, and these non-terminals will finally terminate here. Okay. Next portion is to write equal. अब वो बुक से वहां से देखने मत चले जाना. इक्वल के लिए लिखो, इक्वल में मैंने अभी नल नहीं डाला, मतलब 0 नंबर ऑफ एज एंड बीज नहीं डालने, ये नहीं डाला हुआ. इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज के लिए क्या करना पड़ेगा? CFG लिखो. एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. दीज आर कॉमन प्रॉब्लम्स जो हमने करी है. एग्जाम में कोई भी डिफरेंट, कोई भी रैंडम लैंग्वेज दे देंगे और उसके लिए आपको CFG बनानी पड़ेगी. सो गो डोंट. यस Ma'am, can I leave the class, ma'am? I have to go to somewhere. ओके, प्लीज गो. Thank you, ma'am. कौन बोल रहा है वैसे? Gyanish, ma'am. ओके. इक्वल पे बना लो. डोंट लुक फॉर द आंसर्स ऑन द पेज.
Okay, I'm not checking the answer, but I'm showing you the answer because I think we are running short of the time. So this can be something like this. S goes to A and then you introduce a B. Or S goes to B and then you introduce an A. Just let me copy this somewhere. My whiteboard. मैम नीचे वो डस्टबिन जैसे उसे क्लीन This is a clear option. I was not able to find it. Thanks for helping me. So if you see this, you are saying S introduce an A first, but because it has to have equal number of B's, so introduce a B using a non-terminal. And if you introduce a B, then introduce an A also. Now, suppose if I want to introduce a B, so to balance it out, balance the previous A out, you can have either one B. To form more letters, form the longer strings, you can introduce another factor. So BS. अब अगर मान लो कि डबल ए से स्टार्ट करना था तो एक ए तो आ ही गया था, दूसरा ए डाल दिया और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए डबल बी डाल दिया. इज दिस क्लियर? यू कैन यूज एस, स्टार्ट करो और ए इंट्रोड्यूस करो. क्योंकि ए इंट्रोड्यूस करा तो बी करना पड़ेगा, तो ये इसको बैलेंस आउट करने के लिए, इक्वल करने के लिए एक बी डाल दिया. हो सकता है ये वी डोंट वांट टू फिनिश हियर, वी वांट टू इंट्रोड्यूस मोर फैक्टर्स. तो इस ए को बैलेंस करने के लिए एक बी तो डाल ही दिया, उसके बाद मोर फैक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए यूजिंग एस. अब हमें लग रहा है कि नहीं, सिर्फ हम यहाँ पे ए बी पे रिस्ट्रिक्ट ना हो, आई कैन हैव डबल ए ऑल्सो हियर. सो व्हाट दे डिड वाज, so this B introduce another A. तो एक ए पहले ही था, दूसरा ए आ गया. क्योंकि दो ए आ गए हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए दो बी तो चाहिए ही होंगे. सेम चीज आपने जब बी इंट्रोड्यूस किया तो बी तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए एक ए डाला एंड द सेम थिंग गोज ऑन. So this is not including null but excluding null. Is this clear or you want me to explain it once more? एक और बार समझा दो मैम. Okay, so equal is equal number of A's and B's. So if I have equal number of A's, so I can introduce one A. But if I have introduced an A, then I want to introduce a B also, तभी equal हो जाएगा. तो B अगर जब introduce किया तो B non-terminal should go to B. But I don't want to end here. If I want to end here, I can simply use this production. Otherwise, I will have to create a new production जिसमें A को बैलेंस करने के लिए तो B आए, और जब B आ रहा है तो आप more factors introduce कर दो by going back to S and then keep on making more factors, मतलब the longer string. Now इससे आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि या तो ए बी बनेगा या ए बी से स्टार्ट होगा और उसके बाद कुछ होगा. बट अगर क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें डबल ए चाहिए हो स्टार्टिंग में, तो इसलिए आपने ए डाला और ये वाले बी ने एक ए और इंट्रोड्यूस कर दिया. तो अब आपके पास दो एज हो गए. क्योंकि दो एज हो गए तो उसके लिए आपको दो बीज डालने पड़े. सेम चीज अब इसके बाद अगर आप फिर से एक ए इंट्रोड्यूस करते हो तो वो फिर से एक बी आपके लिए डाल देगा. तो सेम चीज है, अगर आपने बी इंट्रोड्यूस किया तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए ए चाहिए होगा, बैलेंस आउट करने के लिए ए चाहिए होगा. एंड if you want longer factors, so more factors, to introduce an S. What if you wanted to start with a double B or a triple B or so on and so forth? For that case, you introduce one more B. अब दो B's हो गए हैं तो उनको बैलेंस आउट करने के लिए दोबारा से दो A's है. अब वो A हमेशा एक दूसरे को बैलेंस आउट करते रहेंगे. कभी ना कभी तो होगा जब आप टर्मिनेट करना चाहोगे तो हर A को
सिंपल ए, एक सिंगल ए से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Okay. So what if I want to introduce a null also? इसमें नल नहीं है, अगर नल इंट्रोड्यूस करना हो तो ये वाला चल सकता है क्या? इज दिस एनफ? ओके, थिंक अबाउट दिस कि इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी जब यहाँ पे हम एस इंट्रोड्यूस करें. थिंक अबाउट इट एंड देन maybe we can discuss it tomorrow. So I am done with the CFG examples. In the next lecture I will introduce a push down automata. On Friday I will be taking up pumping lemma theorem for your regular languages. Revision है pumping lemma का. आज I will assign you an assignment for clean theorem जिसमें FA1 plus FA2, FA1 dot FA2 and FA1 star आपको बनाना है. तो किसी किसी के में क्वेश्चन सेम होगा, बस FA रिवर्स हो जाएंगे. किसी को FA2 plus FA1, FA2 dot FA1 and FA2 star बनाना होगा. So I will but I will give you more time for this assignment क्योंकि आपको doubts हैं तो we will maybe make time to clear the doubts also. पंपिंग लेमा जो मैंने रेगुलर लैंग्वेजेस की कराई है उसका 1 क्वेश्चन ईच यू विल गेट एंड आई विल कंडक्ट अ टेस्ट ऑन मंडे. सो आई विल कवर पंपिंग लेमा अगेन on Friday as a revision and on Monday I will take a test for pumping lemma, 1 question each, 5 marks. Okay, and then after that I will start with the push down automata. So just to remember, languages formed by CFGs are known as CFLs or context free languages. All regular languages can be generated by CFGs. अभी तक आपने नोट किया हो तो हमने सारी रेगुलर लैंग्वेजेस बनाई हैं एक्सेप्ट फॉर इक्वल. इक्वल हमने प्रूफ की थी पंपिंग लेमा से कि इक्वल इज नॉट रेगुलर. सो बट वी कुड जनरेट ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस बाय CFG. Some non-regular languages can also be generated by CFGs, which are palindrome, equal, ANVN. And set of regular languages is a subset of languages of CFGs. मतलब रेगुलर तो बना ही सकते हो, उसके अलावा कुछ और लैंग्वेजेस हैं जो रेगुलर नहीं है. सम, नॉट ऑल नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस बट सम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस आप बना सकते हो यूजिंग CFGs. So all regular languages are context free क्योंकि they can be expressed both as regular expression as well as the CFGs. But all CFLs are not regular क्योंकि रेगुलर एक प्रॉपर सबसेट है, उसके अलावा कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस भी आप बना सकते हो यूजिंग CFG. So you have to remember that. आपको अगर याद होगा तो चोम्स्की हायरार्की में रेगुलर लैंग्वेजेस थी, उसके बाद सेकेंड लेयर पे आपकी CFG थी. तो जो चीज रेगुलर एक्सप्रेशन से बनाई जा सकती है, रेगुलर लैंग्वेज है, वो CFG के थ्रू भी एक्सप्रेस की जा सकती है. बट उसके अलावा यहाँ पे कुछ और लैंग्वेजेस हैं जो रेगुलर नहीं है पर CFG में बनाई जा सकती है. ठीक है, इज इट क्लियर? शुड आई एंड माय क्लास? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? Okay, then please start exiting. Friday we'll meet 12:30.